امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرمپ کا نیا اقدام تمام ممالک پر 10% ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھی کر دیے۔ امریکہ کو درآمد ہونے والی اشیاء پر 150 دن کے لیے 10% ڈیوٹی عائد ہوگی۔ زرعی مصنوعات، ادویات، معدنیات اور توانائی کے آلات سمیت بعض اشیاء اس عارضی ڈیوٹی سے مستثنی ہوں گی۔ نئی ڈیوٹی کا اطلاق امریکہ کے میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ معاہدے پر نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس امریکی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر دنیا بھر میں وسیع پیمانے پر ٹیرف عائد کر کے امریکی قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ امریکی صدر کو غیر معمولی اختیارات استعمال کرنے کے لیے بھی کانگریس کی واضح اجازت درکار تھی۔ امریکی سپریم کورٹ صدر ٹرمپ کے بیان نے بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کا تاریخی دعویٰ بے نقاب کر دیا۔ بھارت پر یک طرفہ معاشی دباؤ واضح تاریخی قرار دیا گیا تجارتی معاہدہ بھارتی ناکامی میں بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ تجارتی معاہدے میں فائدہ صرف امریکہ کو حاصل ہوگا اور بھارت ہی بھاری ٹیرف ادا کرے گا۔ یہ بیان ان حلقوں کے لیے کاری ضرب ہے جو اس معاہدے پر جشن منا رہے تھے۔ اگر معاہدے کے بعد بھی بھارت ہی مالی قیمت ادا کر رہا ہے تو اسے کامیابی کہنا خود فریبی کے مترادف ہے۔ ماہرین ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو معاہدے کے لیے 10 سے 15 روز کا الٹیمیٹم دے دیا۔ نیوکلیئر معاہدہ نہ کیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ جنیوا میں ہونے والی حالیہ بات چیت بغیر کسی پیش رفت ختم ہوئی۔ صدر ٹرمپ کی ایئر فورس ون طیارہ میں میڈیا سے گفتگو۔ غزہ امن بورڈ کا اجلاس، عالمی منظرنامے پر بڑی تبدیلیوں کا آغاز، جغرافیائی سیاست کا رخ تبدیل، پاکستان کا ابھرتا ہوا کلیدی کردار، دنیا بھر میں پاکستانی سفارتکاری کی دھاک، عالمی رائے عامہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امن پسندی اور تصویراتی بصیرت کی معترف، دنیا پاکستان کی مصالحانہ قوت کے قائل، خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کا کردار ناگزیر قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے بھر میں مخیر حضرات کے اشتراک سے نگہبان دسترخوان سج گئے۔ وزیر اعلیٰ کا 300 سے زائد نگہبان دسترخوان شروع کرنے میں تعاون پر مخیر حضرات اور اداروں کو خراج تحسین۔ آنے والے ہر روزہ دار کا بھرپور خیر مقدم، لاکھوں مہمانوں نے سجے سجائے نگہبان دسترخوان پر پہلا روزہ افطار کیا۔ لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، راولپنڈی، مری سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نگہبان دسترخوان پر مریم کے مہمان۔ رمضان المبارک احساس کا دوسرا نام ہے، ہر فرد کی ضرورت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ پاکستان کے لائیو سٹاک کسانوں کے لیے انقلابی اقدام، پاکستان کی پہلی جنڈر سارٹڈ سٹال لیب کا اوکاڑا میں قیام، مقصد جدید بریڈنگ ٹیکنالوجی، کارپوریٹ فارمنگ اور ویلیو ایڈیشن کے ذریعے لائیو سٹاک شعبے کو منافع بخش صنعت میں تبدیل کرنا ہے۔ ٹیکنالوجی کی بدولت کسان مصنوعی افزائش نسل کے وقت جانوروں کی جنس کا انتخاب کر سکیں گے، دودھ کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن ہوگا۔ طالبان رژیم کی سرپرستی میں افغانستان القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن گیا۔ طالبان رژیم کی شدت پسندی، غیر قانونی سرگرمیوں اور دہشت گردوں کی سرپرستی نے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ افغان طالبان نے القاعدہ کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی۔ افغانستان میں طالبان اور القاعدہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک بھی افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی، سرحد پار حملوں اور شدت پسندی سے شدید متاثر ہیں۔ عالمی جریدے۔ اے آئی سمٹ سبکی میں تبدیل، شائننگ انڈیا کا بیانیہ احتجاج کی نظر، مصنوعی ذہانت اے آئی سمٹ کا انعقاد بھارت کے لیے ہزیمت کا باعث بن گیا۔ اے آئی سمٹ کی بد انتظامی اور تنازعات نے بھارت کی ترقی اور عالمی ٹیکنالوجی کے نام نہاد بیانیے کا پول کھول دیا۔ بل گیٹس کے خطاب کی منسوخی، چینی روبوٹ کو مقامی ایجاد قرار دینے کا جھوٹا دعویٰ اور یوتھ کانگریس کے احتجاج نے سمٹ کو مزید متنازع بنا دیا۔ عالمی ٹیکنالوجی سمٹ کے دوران حکومتی پالیسیوں کے خلاف اس شدت کا احتجاج سیاست نہیں بلکہ مودی کی پالیسی پر سنگین سوالیہ نشان ہے۔ ماہرین
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की अहम खबरें लिए मैं आपके साथ रमेसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सुर्खियां आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज़ के साथ। दुरुस्त बाहर। इरशाद बारी ताला, बेशक अल्लाह तुम्हें अदल, एहसान और कराबतदारों को अता करने का हुक्म देता है और फहाशी, नापसंदीदा कामों और बगावत से मना करता है। अल्लाह इस तरह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पा सको। वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ बढ़ाने के इक़दाम को कलअदम करार दिए जाने के बाद सदर ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया है। सदर ट्रंप ने इस हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक 150 दिन के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। मुस्तस्ना अशिया में मादनियात, खाद, धातें और तवानाई के आलात शामिल हैं। ज़राई मसनूआत, अद्वियात और अद्वियात का खाम माल भी दरामदी ड्यूटी से मुस्तस्ना होगा। नई ड्यूटी का इतलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुल्कों पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। अदालत की जानिब से कहा गया कि ट्रंप ने जिस कानून के तहत ये टैरिफ लगाए वो कौमी इमरजेंसी के लिए बनाया गया कानून ट्रंप को इजाफी टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता। ट्रंप ने अदालती फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा था कि अदालत के चंद मखसूस मेंबरान पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फैसले से दुनिया खुश होगी मगर इसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। टैरिफ से मिलने वाले मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भारत अमरीका तिजारती मुआहदे का तारीखी दावा बेनकाब कर दिया है। सदर ट्रंप ने हालिया बयान में कहा कि कुछ भी नहीं बदला, वो भारत टैरिफ दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे, ये मुकम्मल अलर्ट है। ट्रंप ने वाजे कर दिया कि तिजारती मुआहदे में फायदा सिर्फ अमरीका को होगा और भारत ही भारी टैरिफ अदा करेगा। वाज़ेह रहे कि 2 फरवरी 2026 को सदर ट्रंप ने मोदी के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान किया था। सदर ट्रंप का हालिया बयान उन हलकों के लिए कारी ज़रब है जो इस मुआहदे पर जश्न मना रहे थे। इससे पहले भारत के लिए सदर ट्रंप की हिकमत अमली में सख्त बयानात, मुआशी दबाव, मशरूत रियायत के दावे शामिल रहे। मई 2025 में सदर ट्रंप ने खबरदार किया था कि आईफोन्स अमरीका में तैयार होंगे वरना 25% टैरिफ भारत पर लगेगा। जुलाई में भारत पर 25% टैरिफ आयद किया और भारतीय तिजारती रुकावटें दुनिया में सबसे बुलंद करार पाएं। इसके बाद अगस्त में रूसी तेल की खरीदारी पर मजीद 25% इजाफी टैरिफ नाफिज किया गया। माहिरीन के मुताबिक भारत का तिजारती मंसूबा शिराकत दारी नहीं बल्कि मौशी दबाव की भारतीय सिफारतकारी है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 रोज का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि न्यूक्लियर मुआहदा न किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स वन तैयारा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि ईरान को चाहिए कि वो 10 या 15 दिन में मुआहिदा कर ले। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। वाशिंगटन और तेहरान तवील अरसे से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तनाज़ा हल करने की कोशिश कर रहे हैं मगर जनीवा में होने वाली हालिया बातचीत बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म हुई। गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब के दौरान भी ईरान से कहा था कि वो अमरीका के साथ एक मुअस्सर मुआहिदा करे। और अब कौमी खबरें शामिल करते हैं। नेकियों का मौसम बहार। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में मुखय्यर हजरात के इश्तराक से निगहबान दस्तरखान सज गए। माह मुबारक में दस्तरखान सजाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मुखय्यर हजरात को खिराज तहसीन पेश किया। मेहमान सजे सजाए निगहबान दस्तरखान पर रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं।
مہمانوں کی قورمہ، بریانی، روح افزا، پکوڑوں، سموسوں اور دیگر لوازمات سے تواضع کی جا رہی ہے۔ مخیر افراد اور اداروں کے تعاون سے پنجاب بھر میں 300 سے زائد نگہبان دسترخوان لگائے جا رہے ہیں۔ رمضان نگہبان دسترخوان پر لاکھوں لوگوں کی آمد پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اظہار تشکر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک احساس کا دوسرا نام ہے، ہر فرد کی ضرورت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ صوبے میں رمضان نگہبان پیکج کی تقسیم کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے۔ مستحق افراد کو میرٹ کی بنیاد پر ان کی دہلیز پر امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت ابھی تک رمضان پیکج کی تقسیم تو دور کی بات اعلان تک نہیں کر سکی۔ صوبائی وزیر نے بیان میں کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بانی کی آنکھ، دانت اور جیل میں آسائشیں اہم ہیں۔ ان کی توجہ رہائی فورس اور نیا فتنہ پھیلانے پر ہے۔ گزشتہ سال خیبر پختونخوا حکومت کا رمضان پیکج پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی فہرستوں پر دیا گیا۔ پنجاب میں 42 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ مل رہے ہیں۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جس میں 74 سہولت بازار فعال ہو چکے ہیں۔ گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو کی جانب سے پاکستان کی پہلی جینڈر سورٹڈ سٹرا لیب ایووکاڈو میں قائم کر دی گئی ہے۔ اس کا مقصد جینیاتی بہتری، جدید بریڈنگ ٹیکنالوجی، کارپوریٹ فارمنگ اور ویلیو ایڈیشن کے ذریعے پاکستان کے لائف سٹاک کو ایک پائیدار اور منافع بخش صنعت میں تبدیل کرنا ہے۔ جینڈر سورٹڈ سٹرا ٹیکنالوجی کی بدولت کسان مصنوعی افزائش نسل کے وقت جانوروں کی جنس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ڈیری فارمنگ میں مادہ جانوروں کی زیادہ اہمیت کے باعث یہ ٹیکنالوجی دودھ کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن بناتی ہے۔ بیف سیکٹر میں نر جانوروں کے انتخاب سے گوشت کی پیداوار میں بہتری آتی ہے۔ اس سے قبل پاکستان میں جینڈر سورٹڈ اسٹرا درآمد کیا جاتا تھا جو مہنگا اور محدود پیمانے پر دستیاب تھا۔ آج مادری زبان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا میں 7,000 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، تاہم دنیا میں ماں کی زبان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ مادری زبان کے حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے وردہ سلیم کی رپورٹ۔ 1999 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عالمی سطح پر مدر لینگویج ڈے منانے کی قرارداد پاس کی، جسے پوری دنیا میں مادری زبان کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ جس بچے کو، جس انسان کو تعلیم مادری زبان میں حاصل ہو جائے، اس سے بڑا اس کے لیے کوئی شاندار ذریعہ تعلیم اور ذریعہ تربیت ممکن ہی نہیں۔ اس کی اہمیت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے ہمیشہ کام کیجیے۔ 16 اور 24 گھنٹے کے بچوں پر کی گئی تحقیق کے مطابق ماں کی آواز بچوں کے دماغ کو متحرک کرتی ہے اور بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ماں کی آواز پہچانتا ہے، جو بعد میں اس کی ماں بولی زبان بنتی ہے۔ جو انسان کا پہلا فکری سانچہ جس شعور اور جس ادراک کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، وہ شعور اور وہ ادراک انسان کو اس کی مادری زبان میں حاصل ہوتا ہے۔ اس زبان میں جو اس نے سب سے پہلے سنی اور جو سب سے پہلے بولی۔ پاکستان میں 72 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سے پنجاب میں 8، بلوچستان میں 11، سندھ میں 9، گلگت بلتستان میں 5، آزاد جموں کشمیر میں 7 اور خیبر پختونخوا میں 31 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ دن منانے کا مقصد دنیا میں زبانوں کے ثقافتی تنوع سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہم زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کیونکہ یہی ہماری پہچان، وقار اور بہتر مواقع کا ذریعہ ہے۔ پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، سرائکی، براہوی، شنا، ہندکو، کشمیری اور بے شمار دیگر زبانیں ہماری مشترکہ تاریخ اور ثقافتی روابط کی صدیوں پر محیط داستان بیان کرتی ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ کسان، دستکار اور چھوٹے کاروباری افراد عموماً خدمات، منڈیوں اور معلومات تک رسائی کے لیے مقامی زبانوں پر انحصار کرتے ہیں۔ آئیے آج کے دن ہم عہد کریں کہ پاکستان کی تمام مادری زبانوں کے احترام اور فروغ کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کریں۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کو درپیش مالی بحران براہ راست امن مشنز کو متاثر کر رہا ہے، جس کے باعث نقل و حرکت اور فیلڈ میں موجودگی کم ہو رہی ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں مینڈیٹ پر عمل درآمد، شہریوں کے تحفظ، تشدد کی روک تھام اور امن اہلکاروں کی سلامتی اور تحفظ پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اسپیشل کمیٹی آن پیس کیپنگ آپریشنز کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن مشنز بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام کے لیے ناگزیر ذریعہ ہیں، تاہم انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ مشنز اس وقت بڑھتے ہوئے سیاسی، عملیاتی اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، جس
کے لیے اجتماعی غور و فکر اور مؤثر اقدام کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے امن مشنز میں طویل اور نمایاں کردار کا ذکر کرتے ہوئے سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ پاکستان گزشتہ 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے امن مشنز کے لیے سب سے بڑے اور مسلسل دستے فراہم کرنے والے ممالک میں شامل رہا ہے۔ لیبنان کے جنوب مشرقی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں حزب اللہ کے سینئر رہنما سمیت 12 افراد جاں بحق اور 25 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ وادی بیکا میں متعدد مقامات پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق اور 24 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق یہ حملے ملک کے سب سے بڑے فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی حملے کے چند گھنٹے بعد کیے گئے، جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملوں میں حزب اللہ اور حماس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ نے مشرقی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں اپنے ایک رہنما کی شہادت کی تصدیق بھی کی۔ گروپ نے حملے میں مارے جانے والے رہنما کی شناخت محمد یاغی صادق کے نام سے کی ہے۔ اور AI سمٹ سبکی میں تبدیل ہو گیا۔ شائننگ انڈیا کا بیانیہ احتجاج کی نظر مصنوعی ذہانت سمٹ کا انعقاد بھارت کے لیے ہزیمت کا باعث بن گیا۔ بل گیٹس کے خطاب کی منسوخی، چینی روبوٹ کو مقامی ایجاد قرار دینے کا جھوٹا دعویٰ اور یوتھ کانگریس کے احتجاج نے سمٹ کو مزید متنازع بنا دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین یوتھ کانگریس کے کارکنان نے سمٹ کے دوران اپنی قمیضیں اتار کر حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے مبینہ تجارتی معاہدے میں قومی مفادات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انڈین یوتھ کانگریس کے صدر ادے بھانو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کمپرومائزڈ ہیں اور نوجوانوں کا غصہ محض سیاسی نہیں بلکہ بے روزگاری اور معاشی غیر یقینی صورتحال کا نتیجہ ہے۔ ادے بھانو کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والی بھارتی ڈیل کا فائدہ صرف امریکہ کو ہوگا، جبکہ بھارتی کسانوں اور عام شہریوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مودی ممکنہ طور پر ایپسٹین فائل میں نام آنے یا اڈانی کو بچانے کے لیے فیصلے کر رہا ہے، جس کی قیمت ملک کے نوجوان ادا کر رہے ہیں۔ ملک کی عزت احتجاج سے نہیں بلکہ مودی کے عالمی مجرم کے مشورے سے اسرائیل میں ناچنے سے خراب ہوئی۔ مختلف محاذوں پر ناکامیوں کے بعد بھارت کی ایویشن انڈسٹری بھی شدید بحران کی لپیٹ میں آ گئی۔ بنگلہ دیشی جریدے ڈیلی سن اور بھارتی جریدے دی اکنامک ٹائمز کے مطابق بقایا جات کی عدم ادائیگی پر بنگلہ دیش نے بھارتی نجی ایئر لائن اسپائس جیٹ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ کولکاتہ سے شمال مشرقی بھارتی شہروں جیسے گوہاٹی اور امپھال کے لیے چلنے والی پروازیں طویل اور متبادل راستے اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ متبادل راستوں کی وجہ سے پرواز کا دورانیہ اور ایندھن کا استعمال بڑھ گیا۔ اسپائس جیٹ گزشتہ چند مہینوں سے مالی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ کمپنی کی شیئرز میں بھی معمولی کمی دیکھی گئی۔ دسمبر کو ختم ہونے والے سہ ماہی مالیاتی رپورٹ میں ایئر لائن نے 269.27 کروڑ روپے کا نقصان ظاہر کیا۔ ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان تعلقات سفارتی اختلافات سے بڑھ کر تنازعات کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ فضائی حدود پر پابندی بھارت کے خلاف بنگلہ دیش کے خود مختار موقف کو ظاہر کرتی ہے۔ طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغانستان القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن گیا۔ طالبان رجیم کی شدت پسندی، غیر قانونی سرگرمیوں اور دہشت گردوں کی سرپرستی نے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ عالمی جریدے نے افغان طالبان کی دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی اور افغان سرزمین سے پھیلتی ہوئی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی جریدہ جسٹ نیوز کے مطابق طالبان رجیم کی مکمل سرپرستی سے القاعدہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق افغان طالبان نے القاعدہ کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہیں۔ جسٹ نیوز کے مطابق افغانستان میں طالبان اور القاعدہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک بھی افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی، سرحد پار حملوں اور شدت پسندی سے شدید متاثر ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط افغانستان اس وقت دہشت گرد تنظیموں کی آماد شکا بن چکا ہے، جو خطے کے امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ بلوچستان کے علاقے بولیدہ میں پولیس نے کارروائی کے دوران 37 افغان باشندوں کو حراست میں لیا، جن میں 18 بچے اور 19 خواتین شامل ہیں۔ یہ بولیدہ زمران کے راستے غیر قانونی طور پر ایران جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران 2 گاڑیوں کو قبضے میں جبکہ ان کے 4 ڈرائیور اور سیکنڈ ڈرائیور کو بھی حراست میں لے لیا گیا، جن کا تعلق پنجگور سے بتایا جاتا ہے۔ زیر حراست افغان باشندوں کا تعلق کابل، ہرات، سرپل، بغلان، بادغیس، فرح اور دیگر علاقوں سے بتایا گیا ہے۔ ملک بھر میں اینٹی نارکوٹکس فورس کی منشیات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ANF نے کارروائی کے دوران اسلام آباد اور راولپنڈی میں منشیات فروخت کرنے والا غیر ملکی نیٹ ورک کے سرغنہ سمیت 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ نائجیرین منشیات نیٹ ورک اسلام آباد اور راولپنڈی میں طلبہ کو کوکین اور آئس فراہم کر رہا تھا۔ گرفتار ملزمان سے 860 گرام کوکین کیپسولز،
कोकेन पैकेट्स और मेथ एम्फेटामिन बरामद की गई है। एएनएफ ने मुनशियात की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुनशियात भी जब्त कर ली, जबकि नेटवर्क के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे के दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में भी निगहबान रमज़ान बाजार लगाया गया है, जहां खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें मार्केट से सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक अहमद। रमजान मुबारक में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए रहीम यार खान में निगहबान रमजान बाजार लगाया गया है, जहां पर आम मार्केट से कम निरखों पर फलों, सब्जियों और गोश्त समेत दूसरी खाने पीने की चीजों के स्टॉल लगाए गए हैं। निगहबान रमजान बाजार में 10 किलोग्राम आटे का थैला आम मार्केट की निस्बत 55 रुपए, कमी के बाद 850 रुपए, चीनी 140 रुपए, खजूर 400 रुपए, घी 10 रुपए, कमी के बाद 490 रुपए फी किलो और बेसन 210 रुपए में दस्तयाब है। मैंने यहाँ से फ्रूट खरीदे और सब्जी खरीदी है, जो कि बाजार से काफी सस्ती है। जो यहाँ पे चिकन खरीदा है, मुझे 15 रुपए लेस चिकन मिला है आम मार्केट रेट से, और अंडे खरीदे हैं, अंडे 10 रुपए लेस मिले हैं, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे हमें हर चीज मिल रही है। हमने खजूरें ली, वो तकरीबन हमें 400 रुपए के हिसाब से हमें अपना पड़ी। वही खजूर बाजार में 480 रुपए और 500 रुपए का रेट। मुख्तलिफ कमोडिटीज के ऊपर तकरीबन 5 से लेकर 30 रुपए तक डिस्काउंट है, तो ये बहुत अच्छा बाजार चल रहा है। निगहबान रमजान बाजार में ताज़ा फलों और सब्जियों के अलावा दूसरी खाने पीने की चीजें वाफर मकदार में मौजूद हैं, जहां पर शहरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खरीदारी कर रहे हैं। निगहबान रमजान बाजार में शहरियों की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप और शिकायत सेल भी कायम किया गया है। निगहबान रमजान बाजार में शहरियों के आराम के लिए कुर्सियां और मजदूर अफराद के लिए व्हील चेयर का इंतजाम भी किया गया है। निगहबान रमजान बाजार से जहाँ शहरियों को रिलीफ मिल रहा है, वही ज़कीर अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी भी हो रही है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। जिला पाकपतन में भी 7 जदीद तर्ज के मॉडल रेडी बाजार कायम किए गए हैं, जहां से शहरी सस्ती और मयारी अशिया खरीद रहे हैं। तफसील बताएंगे अब्बास अली आरफी। मॉडल रेडी बाजार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक अवाम दोस्त और इनकलाबी इकदाम है। मॉडल रेडी बाजारों के कयाम से ऐसे रेडीवान जो पहले सड़कों और फुटपाथों पर मुश्किलात का शिकार थे, अब वो मुनज़्ज़म और महफूज माहौल में अपना कारोबार कर रहे हैं। मॉडल रेडी बाजारों के कयाम से न सिर्फ रेडीबान खुश हैं, बल्कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। मरियम नवाज ने बहुत अच्छा काम किया है, सानू बाजार बना के दिता है जी। साडा काम माशाल्लाह पहले नालों भी अच्छा बेहतर है जी, काफी बेहतर माशाल्लाह जी। शहरियों ने भी मॉडल रेडी बाजारों को खुशाइंद करार देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। तो बहुत अच्छा फ्रूट मिल रहा है, मुनासिब भी और चीज भी अच्छी मिल रही है। मरियम नवाज जिंदाबाद। सर मरियम नवाज वज़ीर आला ने बाजार लगवाया है और इतू बड़े अच्छे फ्रूट मिलते हैं और सस्ते रेट नाल मिलते हैं, ते बड़ा अच्छा काम किया सर उन्होंने। मॉडल रेडी बाजारों के कयाम से न सिर्फ शहरी मयारी और सस्ती अशिया खरीद कर रहे हैं, बल्कि शहर की खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी आई है। अब्बास अली आरफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। विहाड़ी में पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 93 जोड़ों की शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिनमें 3 मसीही जोड़े भी शामिल थे। रिपोर्ट कर रहे हैं बहादुर हुसैन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मंसूबे पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत जिला विहाड़ी में 93 जोड़े शादी के हसीन बंधन में बंध चुके हैं। महकमा सोशल वेलफेयर विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम खुर्शीद अनवर स्टेडियम में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और 9 ब्याता जोड़ों में 2 लाख रुपए के ATM कार्ड भी तकसीम किए। 9 ब्याता जोड़ों ने माली मुआवनत फराहम करने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। खुशी मिल रही है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इक़्तिदार के साथ दूर अंदेश भी बनाया, एक विजन भी दिया और खिदमत खलक का हुनर भी दिया। मरियम नवाज को शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा जो काम मुझे शादी हमारी करा दी है। हम क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का, मरियम साहिबा का, जिसने हमारी बेटी के सर पे हाथ रखा। पंजाब हुकूमत के इस इकदाम को नौब्याता जोड़ों के रिश्तेदारों की जानिब से खुश आइंद करार दिया जा रहा है। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी। आज़ाद कश्मीर में तालीमी मयार को बेहतर करने, क़यादत साजी और इदारा जाती हम आहंगी की बेहतरी के लिए मुजफ्फराबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात आपको बताएंगे अदीर अहमद खान।
आज़ाद कश्मीर के महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन और कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के इश्तराक से मुआशरती तब्दीलियों में तालीमी इदारों के किरदार के अनवान से मुजफ्फराबाद में मुनक्कदा सेमिनार में आज़ाद कश्मीर भर से 513 स्कूल्स के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब के दौरान सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन काजी इनायत अली ने कहा कि तालीमी मयार को बुलंद करने के लिए हमें इज्तिमाई सतह पर कोशिशें करनी होंगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मयारी तालीम के फ़रोग के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। चेयरमैन कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन महमूद अहमद ने इस मौके पर खिताब के दौरान कहा कि हमारा मकसद तालीमी निज़ाम की बेहतरी और नौजवानों की किरदार साजी करके इन्हें मुस्तकबिल में रहनुमाई के काबिल बनाना है। उस पॉलिसी में 2040 तक अपने जो अहदाफ है वो हुकूमत ने तालीमी पॉलिसी की सूरत में मुकर्रर किए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा एलिमेंट्री व सेकेंडरी एजुकेशन ने 6ठी से 12वीं के बच्चों के लिए एक नई तालीम जो प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन है उसका आगाज़ नए तालीमी सेशन से शुरू करने का फैसला किया है। शुरका ने सेमिनार को आज़ाद कश्मीर में निज़ाम तालीम की बेहतरी और तलबा की सलाहियतों में निखार के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साफ सुथरे और तजावुज़ात से पाक पाकिस्तान के विजन के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद ने सफाई मुहिम और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रमज़ान और मुबारक के महीने में भी जारी रखा हुआ है। कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमर मासूम वजीर की हिदायत के मुताबिक इंचार्ज कैंट इन्फोर्समेंट स्क्वाड चौधरी हामिद गुज्जर की ज़ेर निगरानी शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। इसके साथ साथ शहर में रोजाना की बुनियाद पर सफाई मुहिम भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कैंट बोर्ड की जानिब से तज़ीनो आराइश का सिलसिला भी जारी है, जबकि मानसहरा रोड को तजावुज़ात से मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद बरी और डिकेती यूनिट की बड़ी कार्रवाई सरका बिल जाबर की वारदातों में मुलव्विस मुनज़्ज़म TCS गैंग के 3 अरकान को लीडर समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार गैंग से 1 करोड़ 73 लाख रुपए से ज़ायद माल मसरूक़ा बरामद किया गया। मुल्ज़िमान खुद को TCS का नुमाइंदा जाहिर करके बोगस मोबाइल सिम से कॉल करते और शहरियों को गेट पर बुलाते असलहे के जोर पर घरों में दाखिल होकर नकदी, तिलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया लूट लेते थे। मुल्ज़िमान से करोड़ों रुपए मालियत की पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी, कीमती घड़ियां, मोबाइल फोन्स, तिलाई जेवरात और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के हाईवे पर तैनात खुसूसी दस्तों ने कार्रवाइयां करते हुए वन व्हीलिंग करने वाले 5 बाइकर्स को गिरफ्तार कर लिया। लेन वायलेशन और ओवरलोडिंग करने वाली हैवी ट्रैफिक की 35 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गईं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रमज़ानुल मुबारक में हाईवेज पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खुसूसी स्क्वाड्स भी तैनात किए हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं तमाम कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रमज़ान सस्ता बाजार कायम कर दिया गया है, जहां अशिया खुरनोश और सब्जियां रियायती निर्खों पर दस्तयाब हैं। इस हवाले से तफसील बताएंगे मोहम्मद अली आलम अपनी इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया गांचे ने रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अंजुमन ताजरान खपलू के ताउन से खपलू शहर में रमजान सस्ता बाजार कायम कर दिया है। इस बाजार में आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां सरकारी नरखों पर बास एशिया इससे भी कम कीमत पर दस्तयाब है। हमारी जो बड़ी बेकरीज है उनके साथ हम इन कोऑर्डिनेशन होकर उनके अंदर भी सस्ता डेस्क एस्टेब्लिश किए हैं, जहां पे उनकी जो बेसिक अवेलेबल आइटम्स हैं उनके ऊपर भी वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक मसनूई महंगाई की रोकथाम और मयारी एशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। जिला भर में मुतल्लिका इदारों के एहलकार रोजाना की बुनियाद पर कीमतों और मयार की निगरानी कर रहे हैं ताकि आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ फराहम किया जा सके। गांचे में रमजान सस्ता बाजार के कयाम से शहरियों को वक्ती रिलीफ जरूर मिला है। अब देखना यह है कि इंतजामिया और अंजुमन ताजरान इस सहूलत को किस हद तक बरकरार रखकर महंगाई पर काबू पाने में कामयाब रहती है। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज़, गांचे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हिकमत अमली तरतीब दी है। तफसील के लिए गिलगित से शेर अब्बास की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए।
मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से गिलगित बल्तिस्तान में वक़ूअ पज़ीर होने वाले हादिसात के नुकसानात को कम से कम करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हिकमत अमली तरतीब दी है। गुज़श्ता साल तवातुर के साथ गल्फ और क्लाउड बर्स्ट के हादिसात और बड़े पैमाने पर नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए रवां साल मुतल्लिक़ इदारों और कम्यूनिटी के इश्तराक से आगाही सेशंस के साथ साथ अमली हिफाजती इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। लास्ट ईयर यहाँ पे बड़े पैमाने पे तबाही हो गई, सैलाब की वजह से, फ्लड की वजह से और क्लाउड बर्स्ट की वजह से गल्फ इवेंट्स हो गए। इस दफ़ा हमने ये एक प्लान अभी से स्टार्ट किया है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इनपुट ले लें कि उनके साथ क्या मसाइल पेश आ गए। गिलगित बल्तिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वो इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक अपने रहन सहन के लिए ख़तरा से दो चार इलाकों के बजाय महफूज मकामात का इंतखाब करें ताकि गल्फ, क्लाउड बर्स्ट, बर्फानी और मिट्टी के तोदे गिरने और दरियाई कटाव के बाइस कम से कम नुकसानात हों। से शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। जापान के शहर होकाइडो में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, बिजली और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। बैरून ममालिक के लिए 145 परवाज़ें मनसूख हुईं और 295 मुसाफिर ट्रेनें बंद कर दी गई। हंगामी हालात के पेश नज़र 300 से ज़ायद स्कूल बंद करने का भी ऐलान किया गया है। और आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि रात के औकात में शुमाली इलाकाजात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, तहम शुमाली इलाकाजात में सुबह और रात के औकात में चंद मकामात पर शदीद सर्द रहा। और अब आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की, अब आपको वापस ये चलेंगे मेंडेस की जानिब। दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सैयदुल अंबिया की सबसे छोटी साहिबजादे फ़ातिह खैबर हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की ज़ोजा और जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और हुसैन की वालिदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की दौर की जद्दोजहद और दावत हो या शौबे अबी तालिब की भूख हो, ज़िंदगी का हर लम्हा बंदगी रब और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाकार है। सुहेल जमाली की रिपोर्ट देखते हैं। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों में सबसे छोटी और चहेती थीं। पैकर सब्र और रज़ा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी और हर नक्श कदम इंसानियत के लिए मशाल राह है। आपको बारगाह रिसालत से तमाम जहानों की ख़वातीन की सरदार का लक़ब अता हुआ। आप हद दर्जा सखी थीं, आपके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली ना गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ना सिर्फ अखलाक़ी बल्कि इल्मी मैदान में भी ख़वातीन की रहनुमाई फरमाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो तरबियत की है, ख़ुसूसी तौर पर क़ुरआन और हदीस की वो माहिरा थी और औलाद की तरबियत बाप की तरबियत से देखी जाती है। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो हसनैन करीमैन में नज़र आती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की है, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की साहबजादी हैं। तो एक ही वक्त के अंदर ऐसे वालिद और ऐसी वालदा जिनको मैसर हो, तो फिर वो खातून जन्नत ना हो तो क्या हो। हिजरत मदीना के बाद 2 हिजरी में आपका निकाह हजरत अली करमल्लाह वजहो से हुआ। आपकी जिंदगी मेहनत, सादगी और ईसार का बेहतरीन इम्तिजाज थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की अजमत सिर्फ तारीख की किताबों तक महदूद नहीं, कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में आयात ततहीर आपकी तहारत और सच्चाई पर मोहर तस्दीक सब्त करती हैं। 10 हिजरी में जब नजरान के मसीहियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस की और हक को तस्लीम करने से इनकार किया, तो अल्लाह ने मुबाहिले का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की सदाकत के लिए बतौर गवाह सैयदा फातिमा और उनके घराने को पेश किया। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की गोद से इस्लाम के वो 2 अजीम सितारे इमाम हसन और इमाम हुसैन रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन तुलू हुए, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के नौजवानों के सरदार करार दिया। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के जरिए ही जारी रखा है। उनकी जिंदगी सिर्फ एक तारीख नहीं, एक बेटी, एक बीवी और एक माँ के तौर पर मुआशरे में तवाजुन का बेहतरीन मयार बल्कि एक दस्तूर हयात है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत साहिवाल में कायम होने वाले मॉडल रेडी बाजार खाने पीने की जरूरी चीजों की DC रेट पर फराहमी से शहरियों की तवज्जो का मरकज है। तफसील बताएंगे खावर अली चौधरी।
पंजाब की हुकूमत इस तरह पंजाब प्रोग्राम के तहत बाजारों से तजावजात के खात्मे के लिए बाजार में लगने वाली रेहड़ियों के लिए अलग से मॉडल बाजार कायम किए हैं, जहां आवाम को रोजमर्रा खाने पीने की चीजें जीसी रेट पर फरोख्त की जा रही। हुकूमत पंजाब का शुक्रिया जिन्होंने ये रेहड़ियाँ दी हैं, ठीक है, ये सस्ता बाजार लगाया हुआ है, ये रेहड़ियों वाले भी अच्छा फ्रूट दे रहे हैं, ठीक है, राहत दे रहे हैं। अब इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला का शुक्र है तो अफल मिल गया है और अच्छा माहौल मिल गया है, गाहक आता है, सौदा लेता है, हुकूमत की तारीफ करता है। इन रेहड़ी बाजारों से शहर से तजावजात का खात्मा हुआ है, जिससे ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई है। अवामी खिदमत के लिए मॉडल रेहड़ी बाजारों की तादाद मरहलावार बढ़ाई जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हर वक्त मॉडल रेहड़ी बाजारों में मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मॉडल रेहड़ी बाजारों से खरीदारी कर रही है। मॉडल रेहड़ी बाजारों का मकसद शहर से तजावजात के खात्मे के लिए आवाम को मसनूई महंगाई से रिलीफ फराहम करना है। खाबर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, साहिवाल। इस्लामाबाद के सहूलत बाजार में आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, सेब, अमरूद, केला, दालें और आटे समेत सब्जियां, फल और दीगर रोजमर्रा जरूरत की अशिया इर्जा निर्खों पर दस्तयाब हैं। हमारे नुमाइंदे वकार हैदर इस वक्त इस्लामाबाद के G6 बाजार में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकार, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के G6 सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज हमने आके रेट्स चेक किए हैं। यहाँ पे जो रेट्स हैं वो मार्केट की निस्बत काफ़ी कम रेट्स मौजूद हैं। जो इंतज़ामिया का भी यही कहना है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल वही रेट्स मिल रहे हैं जो आपको मंडी से रेट मिलते हैं। हम यहाँ पे आपकी चीज़ें आके देख रहे हैं कि चीज़ें की क्वालिटी, जो चीज़ों की क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है। हम आपको ज़रा रेट भी बता देते हैं कि आज क्या रेट चाह रहे हैं। जी, टमाटर का क्या रेट? सर 84 रुपये किलो और ये नींबू 380 रुपये किलो। तो आपने ये चीज़ें देखी हैं, आपने इनके रेट्स भी अब चेक कर लिए हैं कि ऐसे जो टमाटर हैं ये कितने खूबसूरत और लाल लाल टमाटर है। आप देख रहे हैं इसका रेट 84 रुपये किलो है। यकीन करें मुझे मार्केट में इससे सस्ता टमाटर कहीं नहीं मिलता है। इसके साथ आपको थोड़ा सा ये फ्रूट दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास माल्टे मौजूद है, कीनू 230 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। इसके अलावा ये देख ले, इस किस्म के माल्टे आपके मिल रहे हैं। तो अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। रेट्स उससे भी बहुत मुनासिब हैं। तो अगर आपने माह रमज़ान के लिए विज़िट करना है, माह रमज़ान के लिए ख़रीदारी करनी है तो आप इन बाज़ारों में आएँ। इस्लामाबाद के वासियों के लिए जो अच्छी खबर है कि इस्लामाबाद के वासियों के लिए 7 किस्म के बाज़ार इस किस्म के लगे हुए हैं डिफरेंट जगहों पे। तो ये बाज़ार बहुत ही अच्छे, आप यहाँ पे आएँ, अच्छे रेट से अपनी चीज़ें ख़रीदें और अपने जो माह रमज़ान की ख़रीदारी है वो यहाँ से करें। जी, वकार हैदर, आप इस हवाले से हमें इस्लामाबाद G6 बाजार से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताते हैं ज़िला ननकाना साहब में भी 30,000 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद में निगहबान कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी है और अब तक 20,000 से ज़ायद कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद माफिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ननकाना साहब और इसकी 3 तहसीलों में 30,000 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद में निगहबान कार्ड तकसीम करने के लिए अर्बन यूनिट की 200 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं। कार्ड वगैरह जो जिस पर कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसको हल करने के लिए बैंक ऑफ पंजाब का अमला भी इधर मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बंदा जो है वो इसकी कटौती ना करे। कार्ड्स की तकसीम के दौरान डाटा वेरिफिकेशन और बाकायदा बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद ने रमजानुल मुबारक में आसान तरीन तरीके से माली इमदाद की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। ये 10,000 का हम राशन लेंगे और रोजे रखेंगे। मेहनत मजदूरी करते सी, किसी टाइम मजदूरी लभदी है, किस टाइम नहीं दिहाड़ी लभदी। बड़ा ही परेशान सी, बड़ी मेहरबानी कपड़ा जुत्ती ले लांगे। 10,000 रुपया मरियम नवाज ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਾਵਾਂਗੇ और सौदा लवांगे तो रोजे रखेंगे तो सिर में दुआई देवा। मरियम नवाज आपका बहुत शुक्रिया, आपने 10,000 दिए, बच्चों की ईद दिए, वो बच्चों को कपड़े लेने हैं। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि कार्ड की तकसीम का ये अमल बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि तमाम मुस्तहिक अफराद जल्द इससे फायदा हासिल कर सकें। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। पंजाब के दीगर शहरों की तरह पिंडी खेप में भी 2 मकामात पर निगहबान दस्तरखान लगाए गए हैं जहां पर मुसाफिर, मुस्तहिक और नादार मरीजों के लवाहिकीन मुस्तफीद होते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ साबरी। पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के अहकामात के तहत जो है पिंडी बटिया में 2 जगह पर जो है निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान के नाम से जो है दस्तरखान कायम कर दिए गए हैं। जो है अगर दस्तरखान की बात बताऊं तो एक जो है वो मेन पब्लिक पार्क में कायम कर दिया गया, जो दूसरा दस्तरखान है वो तहसील हेडक्वार्टर पिंडी बटिया में कायम किया गया है। आज हमने तहसील पिंडी बटिया में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है
اس کے انیشیٹو کے تحت 2 دسترخوان بیسیکلی اسٹیبلش کیے ہیں. اور یہاں پر جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے یہ اقدام ہے بہت ہی احسن ہے. اس سے جو مسافر ہیں، غریب ہیں، عام آدمی ہے، وہ اس کو بھی افطاری جو ہے وہ کرنے کا موقع ملے. یہ جو مریم نواز نے انتظام کیا ہے روزے کے لیے، یہ بہت اچھا انتظام ہے. بہت زیادہ خوش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بہت اچھا انتظام کیتا ساڈے لے بھی تے جڑے باہروں مسافر آندے نے انہاں لے بھی افطاری دا. رانا غلام علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پنڈی بھٹیاں.